The in previous class, we have learned about applications of computers. So in that, we have discussed about computer application is going to use in education, science, industry, recreation and entertainment, government, health, multimedia, banks. And the topic which was not discussed yesterday, military personnel. As you know, there are several areas in military where computer are going to use. Just like operating missiles, so in the shared screen, I just let me share screen. Shared screen, you can see shared screen. You can see there are different areas where computer are going to use and their application we are using in that area. Just like in education. In education sector, we are using computer for preparing records, reports, and science project also. And another one area where we are going to use for personal work, ticket reservation, like ticket reservation, paying income taxes. And in the business sector, we are also using computer applications just like billing, budget, budgeting, and accounting. Computer application in publication. As you know, in the publication, there are multiple text which is not able the publisher, but he need to download from online and then publish in their magazine or publication stuff. So just like they, if they want to publish their magazine, in that they are taking some article from online sites, copying that and pasting their magazine. Just like DPT, e-reader and designing, these are the area where computer application is used in publication sector, and computer application are also going to use in bank sector, just like e-banking and ATM services, and in the military broadcasting information, trajectories of missiles, modeling of machines. Computer applications are using in modeling of machine. They are like CAD and CAE. Computer applications are going to use for research work like computer aided manufacturing, monitoring temperature. Computer applications are going to use in collection of data for accounting software, ledger, creating system, create a ledger, and computer applications also going to use in
health sector. Just like you have seen in hospitals to monitor a patient performing surgery, there are multiple uses of computer which is going to used by easily computer, and so computer are and their application are used multiple sector in which some of them are you can see in the shared screen. And you have also some questions you can read out it, and the answer you can see at the bottom of the this chapter. So prepare all the questions rapidly. So let's go to next chapter, computer architecture. Computer architecture. So if we are talking about computer architecture, it means computer designing. So in the shared screen you can see components of computer. In the components of computer you can see input unit, output unit, control unit, memory unit, arithmetic logic unit, register, and CPU. So a computer consists of three main components, just like input unit and central processing unit and memory unit. So जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर पे काम होता है तो उसमें जो भी डेटा हमें फीड करना होता है सिस्टम में या जिसपे जो ऑपरेशन है या हमको परफॉर्म करना होता है, तो वह हम किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में देते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को भेजते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट में वही है कि जिसके थ्रू हम डेटा सिस्टम को भेजते हैं और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। So in input unit में we discuss input devices through which we send data to the computer, and output unit. In the output unit, the device which is used to display result is said to be output unit, output devices, and we will discuss in this unit output devices. तो आउटपुट डिवाइस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, प्रिंटर वगैरह होता है। तो इन सारी डिवाइसेस में जो भी प्रोसेसिंग रिजल्ट होता है कंप्यूटर में वह दिखता है। जैसे मॉनिटर पे कोई हम लोग मूवी वगैरह प्ले करते हैं तो वह दिखता है, या कोई हम लोग जो है टाइप करते हैं टेक्स्ट वह दिखता है। इसी तरीके से जो हमारे पास कोई हम ऑडियो वगैरह सुनते हैं तो वह ऑडियो डिवाइस के थ्रू हमको सुनाई देता है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं जो कि आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है नेक्स्ट हमारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देयर इज टू पार्ट, one is control unit and other is arithmetic logic unit. Control unit controls all internal external memory management, file management, all the system, whether it is internal or external. But in case of ALU, it is the arithmetic logic unit, means it perform arithmetic operations and also logical operations, just like arithmetic, जोड़ घटाना गुणा भाग, and logically checking the statement is it true or false. There are some gates which we know and are exclusive or exclusion or NAND. There are some gates in ALU section on which operations perform according to need. Arithmetic logic unit. Now register. Registers are a special purpose and high speed temporary memory in unit. Registers are not referred by their address. मतलब कि रजिस्टर्स किसी एड्रेस के द्वारा जो है रेफर नहीं होता है, वह डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। जब जरूरत होता है तब सीपीयू के द्वारा रजिस्टर डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है और उसमें डेटा जो है रखा जाता है। और ये टेम्पररी मेमोरी के तरह से काम करता है। इसमें जो है जब एग्जीक्यूशन होता है तब डेटा को रखता है सीपीयू। इस तरह से आता है कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट coordinates with the input and output devices of the computer. It directs the computer to carry out store program instruction by communicating with the ALU and the register. कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा साथ जो है काम करता है। साथ साथ यह कंप्यूटर को निर्देश देता है कि कौन से डेटा को कहां से लेके आना और फिर कहां पे रखना है। प्रॉपर सीक्वेंसिंग अब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सके, इसके लिए जो कंट्रोल यूनिट होता है वह क्लॉक इनपुट का यूज करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू टेल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल। मतलब इसका काम यह होता है जो डेटा स्टोर हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है उसको जो है फेच करके लाना, फिर जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और फिर नीड के अनुसार जो है सिग्नल जनरेट करना होता है। कुछ इसमें टर्म्स हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर। The microprocessor is the controlling element in a computer system and is sometimes referred to as the chip.
Microprocessor is the main hardware that drives the computer. मतलब कभी कभी हम लोग इसको जो कंप्यूटर का जो मेन हार्डवेयर होता है माइक्रो प्रोसेसर को ही हम कहते हैं, और इसका काम होता है प्रोसेसिंग। जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है यही होता है, तभी पॉसिबल हो सकता होता है कि लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होता है। यहाँ कुछ प्रोसेसर का नाम है, जैसे इंटेल 4004 was the first microprocessor to contain all of the components of a CPU and a single chip with a 4-bit bus width. Some of the popular microprocessor are Intel dual core Pentium 4 etc. आते हैं मेमोरी यूनिट में आते हैं। मेमोरी यूनिट में आते हैं इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हिच होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो मेमोरी यूनिट होता है यह ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जहाँ पे कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है सुरक्षित रखा रहता है मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में जो हमारे पास मेमोरी होता है वह दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, एक सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी उसे कहते हैं जहाँ पे हमारा कोई भी टास्क जैसे ही स्टार्ट होता है वहां पे आके जो है वह चीज सुरक्षित रहता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एंड रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैम जो हमारे पास होता है इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है रैम को। RAM provides the required information to the processor directly. RAM is a volatile memory. It provides temporary storage for data and instructions. रैम को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा जाता है स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी एंड दूसरे को कहा जाता है डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी जो हमारे पास होता है it is used for storing standard processing programs that permanently reside in the computer. जो रैम होता है वह हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, उसको वर्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यह यूज होता है। और रोम हमारा जो है इसको स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कोई हमें डेटा स्टोर करना है और वह स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में यूज करना है तो उसके लिए हम इस मेमोरी का यूज करते हैं। दैट परमानेंटली रिसाइड इन द कंप्यूटर, यह हमेशा जो है कंप्यूटर में रहता है परमानेंटली। जनरली डिजाइनर्स प्रोग्राम रोम चिप एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्किट। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल कहा जाता है और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन, इस तरीके के मेमोरी को केवल हम रीड कर सकते हैं और लिख नहीं सकते, इसमें कुछ भी हम फिर राइट नहीं कर सकते हैं। इनको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। रीड ओनली मेमोरी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है।
सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है जिसमें जो है परमानेंट स्टोरेज रहता है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी वगैरह जानते हैं, कहते हैं। इसमें जो है हम एक लॉन्ग टाइम के लिए डेटा जो है रख सकते हैं। कुछ टर्म्स है जैसे बफर है, एक्यूमुलेटर है, इसी तरीके से RISC है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो बफर क्या होता है? एक तरह का एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होता है जहाँ पे रजिस्टर जो है, जो एग्जीक्यूशन होने वाला होता है फर्दर, उससे रिलेटेड जो है डेटा को रखता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? is a register in a CPU in which intermediate arithmetic and logic results are stored. ये जो रजिस्टर एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है सीपीयू में, जो कि इंटरमीडिएट अर्थमेटिक अथवा लॉजिक रिजल्ट्स को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर एक तरह का रजिस्टर होता है जो कि इंटरमीडिएट अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट को स्टोर करता है। Reduced instruction set computer and complex instruction set computer are the two kinds of microprocessor classified on the basis of instruction set. जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक को रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और दूसरे को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा जाता है। The performance of computer is affected by the size of registers, size of RAM, speed of system clock and size of cache memory. यदि कोई कहता है कि किसी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो पहला तो रजिस्टर्स है, साइज ऑफ रैम होगा और स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक एंड साइज ऑफ कैश में, जो उसका कैश मेमोरी होता है और सिस्टम का जो क्लॉक स्पीड होता है प्रोसेसिंग का, उस पर डिपेंड करता है। किसी प्रोसेसर का स्पीड मेजर किया जाता है तो मेगा हर्ट्ज में किया जाता है या साइकिल पर सेकंड में किया जाता है। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट, कैसे एक दूसरे जो है यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जो भी सीपीयू में वर्क होता है या प्रोसेस होता है या ऑपरेशंस होता है, वह होने के बाद उससे रिलेटेड डिवाइसेस को भेजा जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में जाता है। इसमें एक बस होता है, थ्रू द बस के थ्रू जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है। तो बस क्या होता है? सेट ऑफ वायर्स होता है यूज फॉर इंटरकनेक्शन, which is where each wire can carry one bit of data. A computer bus can be divided into two types, internal bus and external bus. जो बस होता है उनको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल बस एंड दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल बस। The internal bus connects computer inside the motherboard like CPU and system memory. It is also called the system bus. इंटरनल बस को ही सिस्टम बस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उन कंपोनेंट्स, उनको जो है कनेक्ट करता है, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को। The external bus connects the different external devices, peripherals, expansion slot, input-output port and drives connection
to the rest of computer. It is also referred to as the expansion bus. जो एक्सटर्नल बस होता है वह बाहरी डिवाइसेस को कनेक्टेड करता है, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गए, और डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहते हैं बाहर से, जैसे आप लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, तो ये सब जो है एक्सटर्नल बस कहे जाते हैं, जिनके थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं. द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी आर the input output device is carried by the control bus. जो कमांड एक्सेस होता है, जो कमांड होता है किसी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए अथवा किसी डिवाइस को जो है कंट्रोल करने के लिए, एक कंट्रोल बस होता है जो कि कमांड को कंट्रोल करता है, चाहे वह मेमोरी को एक्सेस करना हो गया या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो है कंट्रोल करना हुआ, तो वह कंट्रोल बस के थ्रू जो है होता है. The address of input output devices or memory is carried by the address bus. फिर ये कहा जाता है एड्रेस बस, जिसके थ्रू जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अथवा एड्रेस बस के द्वारा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस को कैरी किया जाता है अथवा मेमोरी को कैरी किया जाता है. डेटा बस के द्वारा जो ट्रांसफर डेटा होता है उसको कैरी किया जाता है. फिर आ जाते हैं हम मदरबोर्ड. मदरबोर्ड में जैसे कि आप लोग देखते हैं उसके अंदर एक पीसीबी लगा होता है, जिसमें जो है आपको मिल जाता है रैम भी लगा होता है, रैम के स्लॉट्स लगे होते हैं, फिर जो है उसमें प्रोसेसर का बना हुआ स्लॉट लगा हुआ है, और भी उसमें लगे हुए ग्राफिक्स कार्ड का लगा हुआ रहता है इस तरीके से. तो जो उस तरह का होता है जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हम कहते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं. उसको मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है. इसको हम लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड या प्लानर बोर्ड भी कहते हैं. द बिगेस्ट पीस ऑफ सिलिकॉन housed in the system unit of the computer is motherboard. फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल. You can see in the diagram instruction cycle. In the circle there are some typed word just like fetch, decode, execute, store. This is the instruction cycle.
In the instruction cycle, you can see has it will be fetched, the data will be fetched from the database. After that, it will be decoded, then it will be execute, and after that it will be stored in the memory. This is the instruction cycle. If someone is asking how does instruction cycle work, then there are 4 points: fetching, decoding, executing, and storing. So instruction format: computer understands instructions only in terms of zeros and ones, which is called the machine language. A computer program is a set of instructions that describe the steps to be performed by carrying out a computational task. The processor must have to input instructions and data. The instructions tell the processor what actions are needed to be performed on the data, and instructions is divided into 2 parts: operations and operand. जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता हुआ 0 और 1 पर ही काम करता है, जिसको मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटेशनल टास्क के द्वारा परफॉर्म होता है। प्रोसेसर के पास जो है 2 चीजें होती हैं, एक तो इंस्ट्रक्शंस होता है और दूसरा डेटा होता है। इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को कहता है क्या करना है और डेटा किस पे काम करना है। इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में 2 तरह का इनपुट होता है। पहला एक इंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा डेटा होता है। तो इंस्ट्रक्शन कहता है कि डेटा पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक कहलाता है ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेंड। जो इसमें ऑपरेशन होता है, क्या जो प्रोसेसर में ऑपरेशन होता है, मतलब वो कहता है क्या एक्शन परफॉर्म करना है और किस तरह से करना है। कुछ इसमें टर्म्स है, मशीन साइकिल है, पाइपलाइनिंग है, सॉकेट है। तो मशीन साइकिल डिफाइंड बाय द टाइम it takes to fetch 2 operands from register. It performs the ALU operations and stores the result in a register. Pipelining improves execution speed by putting the execution step of several instructions into parallel. It is also called instruction prefetch. Sockets are the connecting points of chip on the motherboard. जैसे कि आप लोग देखते हैं, आपके पास जो रैम लगा होता है या ग्राफिक्स कार्ड के लिए लगा होता है या अदर से यूएसबी कनेक्ट करने के लिए लगा होता है, वो सब कहलाते हैं सॉकेट्स, जिनके थ्रू जो है हम मदरबोर्ड से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं सॉकेट। वर्ड कंप्यूटर को हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस एक्सटर्नल मेमोरी। वर्ड कंप्यूटर
Load instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory. लोड इंस्ट्रक्शन का यूज मेमोरी से डेटा को लोड करके सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखना होता है. The box that come along with your desktop computer, in which all the electronic components of your computer are connected, is called system unit. मतलब सारा कुछ जो है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चाहे वह कंपोनेंट्स हुआ या अदर डिवाइसेस हो गए, उनको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, पूरे कंप्यूटर को. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस you have to read out, and you can also see the right answer of the respective questions. Just like question 1 is which is not an integral part of computer, then right answer will be one first number. uh, uh, Sorry, the first question in the check your skills, which is not an integral part of computer, there are 5 options: CPU, mouse, monitor, UPS, none of these. Integral part. So in that, UPS is integral part. No, no, it is not. One of the motherboard, the connection point for chips are